السلام علیکم ناظرین کشر خبرنامہ ہیت چھس بہ ساحل امین تہندس خدمتس من حاضر تو خبرن ہند تفصیل زاننے برو اخ نظر چن خاص خبرن پہ انجمن اوقاف مرکزی جامع مسجد سرینگر اہم اجلاس جمعۃ الوداع تو شب قدر حوالہ کرنے آمتن انتظامن ہز ہن آمت سام لوک بھون ہماچل پردیش من حلف برداری ہز تقریب سنز کویندر گپتاہن تلمت رازداری حلف امریکہ تو اسرائیل طرف دہشت گردی ہند ثبوت پیش کرنے عالمی برادری پزِ امن قائم کرنے حوالہ سنجیدہ سپدن محمد یوسف طارق ناظرین پیش خبرن ہند تفصیل انجمن اوقاف مرکزی جامع مسجد سرینگر اخ اہم اجلاس سپد آز میر ویز کشمیر مولوی محمد عمر فاروق سن سربراہی مز یتھ دوران شب قدر تو جمعۃ الوداع حوالہ کتھن ڈل دن آو اجلاس دوران یہ کرنے والن انتظامن ہز سام ہن آئی تت میر ویز کشمیر مولوی محمد عمر فاروقن وونمت تمن ومید پتمو 6-7 وریو پتہ یم پھر مرکزی جامع مسجد مز جمعۃ الوداع کس موقع پہ نماز جمعہ ادا کرنے تو انتظامیہ طرف ین ات مز کن قسمک ٹھہر پید کرنے الحمدللہ جیسے کہ ہم جانتے ہیں کہ ماہ رمضان کا آخری عشرہ اب شروع ہو چکا ہے اور اس عشرے میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو نعمتیں ہمیں مل رہی ہیں خاص کر وہ ایسے ایام جن میں کہ جمعۃ الوداع ہے اور شب قدر ہے اور عید ہے تو انشاءاللہ آج انجمن اوقاف جامع مسجد کا ہماری میٹنگ ہوئی اس حوالے سے اور انتظامات کو ہم نے حتمی جو ہے وہ ان کا جائزہ لیا ہے اور اس امید کے ساتھ کہ آج انشاءاللہ 6-7 سال کے بعد مسلمانان کشمیر جو ہے وہ جمعۃ الوداع کی جو نماز ہے وہ جامع مسجد میں ادا کریں گے انشاءاللہ تو اس حوالے سے جو بھی انتظامات ہیں ان کو ہم دیکھ رہے ہیں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی حکومت کے پاس وجہ نہیں ہے کہ اس پروگرام کو نہ ہونے دیا جائے اور ہم انشاءاللہ توقع رکھتے ہیں کہ پرامن طریقے سے بڑے ڈسپلن کے ساتھ یہ پروگرام ہوں گے اور شب قدر کے حوالے سے بھی انشاءاللہ پروگرام عوام کے سامنے آئے گا اور عید کے حوالے سے بھی جو ہے حتمی فیصلہ جو ہے وہ عوام کے سامنے آئے گا تو انجمن اوقاف تو تیار ہے کہ جو بھی ہمارے یہ پروگرام ہیں ہم چاہتے ہیں کہ انہیں ہم بخوبی انجام دیں اور ہم توقع رکھتے ہیں کہ حکومت اس میں تعاون دے گی انتظامیہ تعاون دے گی وہ کوئی روڑے نہیں اٹکائیں گے تاکہ انشاءاللہ یہ جو پروگرام ہے یہ حسن خوبی کے ساتھ انجام کو پا سکیں اور اس کے ساتھ ساتھ ان ایام میں چونکہ اب آخری ایام ہیں تو یہ بھی ایک موقع ہے ہمارے لیے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ جڑنے کا اور اپنے جو ہماری جو عبادات ہیں ان عبادات میں ہم اضافہ کریں اور اس سے بہتر کیا ہی ہے کہ ہم اجتماعی طور ان ایام میں جامع مسجد کا رخ کریں نماز ذکر اذکار اور اللہ تعالیٰ سے اپنے تعلق کو مضبوط کریں ہم سب دست بدعا ہیں کہ انشاءاللہ یہ آخری ایام پوری امت کے لیے خیر و برکت لائیں الحمدللہ لوک بھون ہماچل پردیش مز آز حلف برداری ہز تقریب سنز کرنے آمت یتھ دوران ہماچل پردیش نیب گورنر کویندر گپتاہن رازداری حلف تل یل زن تمو ات موقع پہ وون یس ذمہ داری مرکزی سرکار طرف تہندین پھکن پہ تراؤنچ آمت سہ نباونچ کرن تم ہمیشہ کوشش کویندر گپتاہن ات موقع پہ وونمت دفعہ 73 ختم کرنے ست جموں کشیر تو لداخ مز ترقی ہند اخ نو دور شروع سپدمت یم ست عام لوکن راحت ووت ہماچل کے اس لوک بھون میں سبھی ہمارے پترکار بندھوؤں کا سواگت کرتا ہوں. کل ہی میں پرانے اپنے جہاں مجھے میرا کاریہ کھیتر رہا ہے لیہ سے آنے کا موقع ملا. ہماچل کے راجیپال بننے سے پورو لگ بھگ 7.5 مہینے میں نے لیفٹیننٹ گورنر کے روپ میں اپنا کاریہ لداخ میں نبھایا ہے. لداخ بھی کسی وقت جموں کشمیر کا حصہ ہوا کرتا تھا. مجھے لگتا ہے کہ
धारा 370 हटने के बाद और लद्दाख अलग से यूटी बनने के बाद एक बहुत बड़ा विकास जो है लद्दाख में हो रहा है। और मैं जम्मू कश्मीर से ताल्लुक़ रखता हूँ, वहाँ का रहने वाला हूँ। सारी स्टडी मेरी पंजाब से हुई है। हिमाचल और जम्मू कश्मीर हमारी सभ्यता, हमारी संस्कृति, हमारी बोली, हमारा रहन सहन काफ़ी मिलता है। और मुझे लगता है कि जो सेवा करने का मौका मुझे हिमाचल प्रदेश में मिला है, मैं उसको ठीक प्रकार से निभा पाऊँ। मेरा अक्सर मैं बोलता हूँ, पद का अंतिम लक्ष्य नहीं है सिंहासन चढ़ते जाना, सब समाज को लिए साथ में आगे ही बढ़ते जाना। तो मुझे लगता है कि हिमाचल के विकास के लिए ये जिस प्रकार से ये सुंदर पहाड़ी क्षेत्र है, यहाँ पर्यटन के बहुत संभावनाएं हैं। यहाँ पर लोगों का जो आतिथ्य है, क्योंकि बाहर से पूरे हिंदुस्तान से लोग यहाँ पर आते हैं। जम्मू कश्मीर की मिलिटेंसी के दौरान यहाँ का जो पर्यटन है बहुत बड़ा है। यहाँ एक रिलीजियस टूरिज्म का बहुत बड़ा स्कोप है। और मैं चाहता हूँ, प्रधानमंत्री जी से भी बात होती है, सभी से, मैं अलग अलग पदों पर रहा। जम्मू में मैं 3 बार मेयर रहने का मुझे मौका मिला और विधानसभा का स्पीकर बनने का मौका मिला। उसके बाद जम्मू कश्मीर का डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनने का मौका मिला। तो इसी तरह से लद्दाख का उपराज्यपाल, यहाँ राज्यपाल। तो लोगों की नब्ज़ को पहचानना मुझे लगता है कि जरूर जो मेरी अपनी एक तरीका रहा है उसको करने की कोशिश करेंगे। मेंबर असम्बली कुलगाम तो CPIM लीडर मोहम्मद यूसुफ तहरीक मशरक वस्तु कन हालात हवाले कत करान वोनमुत जे अमरीका तो इसराइल तरफ ईरानस पे जबरदस्ती कर दहशतगर्दाना कार्रवाई अमल मज अन्न यम सत ईरानस मज मौसूम तो बेगुनाह लोग जाम बहक सपदन। ये जन तमो वोन जे अमि सत हेकि पूरे दुनियास मज अक बहरान पैदा सपदित यम सत आम लोग आवलिनस मज हेन यन। मैं सिर्फ ये कहूँगा कि डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू पागलपन सवार हुआ है इन दोनों लीडरों को। मेरे पास और कोई लफ्ज़ नहीं। और ये नहीं कि इनके साथ जंग है, बल्कि अमेरिका और इसराइल की तरफ से ये जंग शुरू हुई है, मुसल्लत की गई है ईरान पर। और ये इस वक्त मुसल्लत की गई जब जेनेवा में बातचीत जारी थी। ओमान के फॉरेन मिनिस्टर जो इस बातचीत को फैसिलिटेट कर रहे थे, उनका खुद मानना है कि बातचीत में प्रोग्रेस हो रही थी। एक तरफ बातचीत, दूसरी तरफ से यलगार। और एक ही स्कूल में पढ़ने वाली मासूम बच्चियां 150 के करीब, उनको कत्ल किया गया। और उसके बाद वहां की क़यादत, वहां के सुप्रीम लीडर, उनके रुफ़का, उनके रिश्तेदार को कत्ल किया गया। ईरान में कौन सा निज़ाम कायम होगा, किसकी हुकूमत कायम होगी, वो ईरान के अवाम का हक बनता है, अमेरिका का नहीं, इसराइल का नहीं, किसी और मुल्क का नहीं। और फिर वहां की लीडरशिप को कत्ल करना और फिर खुलेआम इसको एक अचीवमेंट के तौर पर दुनिया के अवाम के सामने पेश करना, आज शैतानियत मेरे ख्याल में इन्होंने वो हदें भी पार कर दी है। मेरे पास और कोई लफ्ज नहीं है कि पागल है ट्रंप, पागल है नेतन्याहू, जो इस वक्त पूरे दुनिया को आग में धकेल रहा है। आप वेस्ट एशिया की बात करते हैं, आप इस खित्ते की भी बात कर लीजिए। अगर ये आग फैल गई, कोई खित्ता बचेगा नहीं। और इसकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी अगर है, वो अमेरिका पर है और इसराइल पर है। और इसलिए मेरी तरफ से यही अपील है, जो भी सुने हमारी बात,
दुआ कर लें या समर्थन कर लें उन कुव्वतों की जो इस जारियत का मुकाबला कर रहे हैं जुर्रत से, बहादुरी से। आपके अपनी राय होगी उनके बारे में, कौन किस मसलक के साथ ताल्लुक रखता है, कौन किस सियासत के साथ ताल्लुक रखता है। लेकिन आज जो ईरान पर कहर, बल्कि ये कहेंगे कि बर्बरियत का दौर चल रहा है, शुरू किया है अमेरिका ने और इसराइल ने, पूरे आवाम को, दुनिया भर के आवाम को चाहिए कि वो खड़े हो जाए ईरानी मौसूम लोगों के हक में और कह दे अमेरिका से, इसराइल से, ये पागलपनी का दौर चलेगा नहीं। दुनिया में अमन चाहते हैं हम, अलग अलग इख्तलाफात राय हो, कौन किस सियासत के साथ मुंसलिक रहे, कौन कैसे अपने मुल्क को चलाए, वो वहाँ के लोगों का अकीदा है, हक है। लेकिन कोई मुसल्लत कर ले और फिर पागलपनी में हुक्म कर ले वहाँ से, कौन लीडर बनेगा कौन नहीं बनेगा। तारीख ने आज तक ये चीज़ें देखी है और तारीख का फैसला बहुत बहुत खुलकर सामने आया है। बेशक लोगों की जानें चली गई हैं, लेकिन जो ये शैतानी कुव्वतें हैं वो कभी अपने शैतानी अमाल में कामयाब हुई नहीं। ये भी तारीख महकमे मौसमियात पेशन गोई मुताबिक ये वादी हंदिस मौसमस मज तब्दीली वुचन आई। यथ दौरान कईयान जायन पर मदनी इलाकन मज रुदल तो कईयान जायन पर बाली इलाकन मज शीन पे तथ महकमे मौसमियात को जिम्मेदारों तरफ वन आमद इन वालन दोहन मज त रूद पेनुक इम्कान यम सहित मुकामी लूकन तो खास कर जमींदारन तो बाग वालन राहत वातन उम्मीद। जी बहुत बहुत शुक्रिया। देखो अभी जैसे एक्सपेक्टेड था बारिशें खासकर कल देर रात से हुई और इसी तरह आज अर्ली मॉर्निंग भी जो है काफ़ी ज़्यादा जगहों पे बारिशें हुई, खासकर नॉर्थ कश्मीर, सेंट्रल कश्मीर के अंदर। और करंटली ये एक्टिविटी हो रहा है, कुछ एक पहाड़ी इलाकों में लाइट स्नोफॉल अभी करंटली चल रहा है। तो खासकर आज दिन में भी थोड़ा सा क्लाउडी वेदर एक्सपेक्टेड है काफ़ी सारे जगहों पे और यहीं पहाड़ी इलाकों में हल्की बर्फबारी जो है इंटरमिटेंटली रहेगा। और उसके साथ साथ आज रात के टाइम भी जो है थोड़ा एक्टिविटी रहने के चांस हैं और इसी तरह कल नाइट और परसों सुबह के बीच में भी एक्टिविटी के चांस हैं। फिर उसके बाद बीच में थोड़ा सा वेदर ठीक है और 15-16 के बीच में फिर से एक WD अप्रोच कराए, तो उस वजह से भी जो है हल्की बारिशें मैदानी इलाकों में और पहाड़ी इलाकों में, खासकर नॉर्थ कश्मीर, सेंट्रल कश्मीर के कुछ एक पहाड़ी इलाकों के अंदर थोड़ा लाइट स्नोफॉल के चांस फिर 17-18 के बीच में भी है। तो लगभग 20 तक 2-3 WD जो आ रहे हैं, उसकी वजह से हल्की फुल्की बारिशें मैदानी इलाकों में और पहाड़ी इलाकों में थोड़ी हल्की बर्फबारी आज और कल के दरमियान जो है थोड़ा मॉडरेट स्नोफॉल के भी चांसेस हैं। अच्छा, जो टेम्परेचर्स बहुत ज़्यादा राइज हो रहे थे फरवरी के महीने में और फर्स्ट वीक ऑफ मार्च, तो उसमें कुछ फ़र्क पड़ेगा? बिल्कुल, अभी जो मिनिमम है वो राइज़ हुआ है क्योंकि क्लाउडी वेदर रहा है। तो जो मैक्सिमम है उसमें जैसे ऑलरेडी एक्सपेक्टेड था कि 4 से 6 डिग्री या 7 डिग्री तक का भी फॉल होगा, तो वो फॉल जो है आज और कल टिल 12th को जो है फिर से थोड़ा इम्प्रूवमेंट के चांस है। तो आज और कल जो है 4 से 6 डिग्री तक का फॉल देखा जा सकता है। पेश मज़ीद खबरन तफसील समाजी बाबत महकम तरफ आज टाउन हाल पुलवामिस में जन हिंद आलमी दह की मुनासबत प्रोग्राम साज करना आमुत यथ मज महकम के जिम्मेदारों तो मुख्तलिफ शोबन सबिस्त जनो शिरकत कर। अत मौके पे जन हिंदन हकूकन हवाले कथन दल दिन आव तथ तिमन दरपेश मुश्किलन हवाले कथन दल दिन आमुत। यल जन जिम्मेदारों तरफ वन आव जन बाख्तार तो बावकार बनानस हवाले सरकार तरफ कई स्कीम मुतरफ करना आम युद्ध जन जन ब्रो पकनस मज आसानी सपद ताहम जरूरी जन यन अमे हवाले ब्रो कुन। प्रोग्राम के हवाले से हम क्या बताएं। इंटरनेशनल वीमेंस डे इट्स सेलिब्रेटेड ग्लोबली। यहाँ पुलवामा में हमारे जो सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट से वीमेंस हब इन्वॉल्व है, उसमें हमारी जो मैक्सिमम वर्कर्स हमारे डिपार्टमेंट्स में जो हैं दैट वर्क फॉर विमेन एंड चाइल्ड, जैसे मिशन पोषण है, हेल्थ डिपार्टमेंट से आशा वर्कर्स हैं, एजुकेशन डिपार्टमेंट से टीचर्स हैं, उन्हें थोड़ा सा हमने फेलिसिटेशन, थोड़ा सा एप्रिसिएशन दे दी जो वो काम करती हैं। लेकिन आज के हवाले से ये था कि उनके राइट्स क्या हैं, उन्हें कहाँ पे किस जगह लड़ना चाहिए अगर कोई उनके ख़िलाफ़ कुछ है। तो ये इसलिए ये दिन नहीं मनाया जाता कि उस दिन हमारे कोई स्पेशल होता है, लेकिन ये है कि अवेयरनेस हो अबाउट डिफरेंट एस्पेक्ट्स, डिफरेंट राइट्स
जो औरतों के लिए है, ये उस हवाले से एक प्रोग्राम था जिसमें मुझे बुलाया गया था, बीइंग अ वुमन। तो रेस्ट ऑफ द थिंग्स आर जो ऐसी जैसे हमारे बाकी अवेयरनेस प्रोग्राम्स होते हैं, इसमें भी वही अवेयरनेस दी गई, लेकिन म्यूनसिपल कमेटी रामबन से मुंसलिक सफाई कर्मचारियों तरफ आज एहतजाज मुजाहिर करना आमुत यात दौरान एहतजाज में शामिल कर्मचारी इंसाफ फराहम करने मंग करान एहतजाज में शामिल कर्मचारियों तरफ वन आमुत योद तम पन फरज चुकसान अंजाम दिवान ताहम तिहज उजरत वक्तस पे अदा करने यमकिन तम मुश्किल मज हन आय यपर कमेटी हंदो जिम्मेदारों तरफ वन आमुत कर्मचारियों हंद मुतालबा पूरे करने हवाले संजीदा कदम तुलने युत जन तिमन बुथिन वल मुश्किल दूर करने तो 6 साल से पिछले जो ठेकेदारी खाते के लड़के थे इनको दफ्तर ने लगाया था और इनके पैसे जो 60-70 हज़ार रुपया है वो स्टाफ के पास पड़ा हुआ है। ये इनको बोलते हैं हमें पैसे दो, तो ये बोलते हैं ठेकेदार को पकड़ो जाकर उससे ले लो। हम इनको ये बोलते हैं कि अगर आपने लगाया है इनको तो पैसे भी आप इनको देने चाहिए थे। हमें क्या पता ठेकेदार जम्मू का था, कुठवा का था, कहाँ का था, हमें उससे ठेकेदारी कुछ नहीं। आप इनके साथ हिसाब करो, मैं इनका प्रेसिडेंट भी हूँ। और इसी मसले में दफ्तर के अंदर हम कल गए और जहाँ पे हमारी थोड़ी दफ्तर वालों के साथ भी मैं तू होगी इसी बारे में। और दूसरा हमारा जो मसला है जनाब तनख्वाह का है, हमें तनख्वाह टाइम पर नहीं मिलती है। हमें 30 दिन लगाकर भीख मांगनी पड़ती है इनसे कि हमारी सैलरी निकालो। ये कब से आप हड़ताल पे हैं? ये जनाब आज से हम हड़ताल पे, कल हमने नोटिस दे दी थी, आज लगा दिए। ये कल हमारा मसला हो गया था और इसमें पूरी चुनाव बिली है, जम्मू प्रामस भी है हमारे साथ कि अगर आज इन्होंने फैसला यहाँ पर नहीं किया हमारे साथ, हो सकता है कल डोडा कश्तवाड़ ये भी कमेटियाँ बैठ जाए। ये काम जो हड़ताल पर थे इन्होंने मुझे कोई भी नोटिस नहीं दिया था। तो कल आज मैं जो सुबह ऑफिस में आया तो उन्होंने नोटिस दिया कि हमें सैलरी टाइम पर नहीं मिली है। तो सैलरी का ये था कि फरवरी महीने में जो सैलरी है वो थोड़ी डिले हो जाती है, इनकम टैक्स की प्रॉब्लम होती है, इनकम टैक्स एम्प्लॉइज़ के काट रहे होते हैं। तो अब मैंने अपने जो कंसर्न है अकाउंट सेक्शन, उनको मैंने कहा कि आज सैलरी पड़नी चाहिए। सेकंड ये है कि इनकी एक डिमांड थी कि इन्होंने हमारे कैजुअल लेबर थे जो आउटसोर्स थे, उनकी 2.5-3 साल पहले एक किसी कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू सप्लाई हुई थी लेबर की, तो उस हमने उनको पैसे दे दिए, लेकिन इनको पैसे उन्होंने नहीं दिए थे। वो फर्म जो है वो बैटोत की है, तो उसको हमने बड़ी बार कहा कि भाई इनको पैसे डालो, लेकिन वो हम कोशिश करेंगे कि वो उसको कॉन्टैक्ट करके नोटिस निकालेंगे और अगर वो नहीं करेगा तो उसको कानूनी। मेंबर असम्बली खान साहब सैफुद्दीन बटन आज सयाती मुकाम दोद पथर दौर कोर्मुत यथ दौरान तिमो अत काम करन वालें लूकन सहित मुलाकात कोर यल जन तिमो अत मौके पे मरकजी सरकार LG मनोज सिन्हा तो वजीर आला उमर अब्दुल्ला सुन शुक्रिया अदा करान वोन ज अहम फैसले निन सहित दोद पथर सहित मुंसलिक लूकन सठोई राहत वोतमुत वमीद यम लूक ते हकन आसानी सान अन चोर जीनियत यह कत बावन लायक ज पहलगामस मज पेश आमत वाक़ पत ये जम्मू कश्मीर मज सरकार तरफ सयाती जायन पे सयाहन हंदिस इनस गसनस मज पाबंदी आयद करना आमज तो हन हन यमो जायों पे पाबंदी हटावन तत दोद पथर मज तो पतमन दोहन यह पाबंदी हटावन आमज यम पत अत दोद पथर सत मुंसलिक लूक सठे खुश नजर गछान। दोद पथरी का दौरा ये था, पहले अल्लाह का शुक्र मैं करता हूँ, फिर उमर साहब का जिसको बहुत मेहनत करनी पड़ी इस दोद पथरी खोलने के लिए, और अमित शाह जी का भी, LG साहब का भी, जिनको उन गरीबों का इंसाफ आ गया जिनके चूल्हे बुझ गए थे, तो ये दोद पथरी खुली छोड़ी। तो एक तो उसके लिए मैं आया था, शुक्रिया अदा करूं अल्लाह का और उन सब का। दूसरा यहाँ कुछ प्रॉब्लम्स थी ATV वालों को, घोड़े वालों को और चाय वालों को, तो वो CO साहब के साथ, पुलिस के साथ मिलकर घोड़े वालों को, ATV वालों के साथ और ये चाय वालों के साथ, सब के साथ मिलकर कुछ फैसले लिए जिससे कि टूरिस्ट को एक अच्छी सहायता मिले और ये लोग टूरिस्टों को अच्छी तरह से पेश आए और टूरिस्ट दिल खोल कर यहाँ
पैसे खर्च करके कोई चाय पिए, कोई कुछ भी खरीदेगा, और कोई एटीवी की सवारी, कोई घोड़े की, टूरिस्ट को राग़िब करने के लिए कुछ अच्छे इक़दाम किए, इनसे मिलकर समझौता किया आपस में इनका, घोड़े वाले, एटीवी वालों और चाय वालों का, जिस पर मैं बहुत खुश हूँ आज कि एक स्मूथली एक दौद पत्थर का एरिया जो है और तोस मैदान का ये चलेगा आज से इंशाअल्लाह। मैंने कुछ इक़दाम और लिए हैं। एटीवी के लिए अलग उनको कोई स्टैंड नहीं था, वो स्टैंड बनाएंगे। चाय वालों के लिए दुकानें नहीं थी, कोई जगह नहीं थी ऐसी जो कि एक पक्की जगह हो जहाँ से साफ सुथरी हो, उसके लिए भी स्टेप किए, रजिस्ट्रेशन करनी है उनकी। तीसरा, घोड़े वालों को जगह नहीं थी, न घोड़ों के लिए न अपनी। शुमाली टंगमर्गी हिंदो लूको तरफ शिकायत बावान वन आमद यदवे मुकामी सड़कें खस्ताहली हवाले कई फिर रुकामन जान दिन आई, ताहम आज ताम कह कदम तुलन आमद यम मुकामी लूकन तौर इन वाले सयाहन सठा मुश्किल वेतरन पेवान। मुकामी लूको तरफ इंतजामिया मांग कर आमद सड़कें शहर पर हवाल गसन संजीद कदम तुलन। मसले सर द्रंग रोड ये आम पब्लिक तक पकान, टूरिस्ट पकान, गोस कम्प्लीट फारूक सबस गुजारिश करान गोस कम्प्लीट गसन। ये मसला ये है कि जो टंगमर्ग से द्रंग वाटरफॉल या टंगमर्ग गांव तक जो रोड जाता है, क्यों इसमें आप जानते हैं आगे बहुत सारे लोगों की जो लोकल रेजिडेंसी भी है, उसके साथ साथ जो यहाँ से टूरिस्ट भी जो रुख करते हैं द्रंग वाटरफॉल के लिए या यहाँ पे आगे घूमने के लिए। लेकिन हमारी बदकिस्मती के कारण जो रोड है इसमें बहुत सारे मतलब इतना इफेक्ट हुआ है, ख़राब रोड है, गड्ढे बड़े बड़े हुए हैं। पिछले साल भी हमें बहुत सारी उम्मीदें थी कि यहाँ पे एक जो लोकल सरकार बनी थी जम्मू कश्मीर। सोन मुतालबा द्रंग रोड यह शहर नीन यह मतलब अमिस डिपार्टमेंटस अपील यह गुन दियो तवज्जो ये MLA सबस क्या टूरिस्ट डेस्टिनेशन अत गाड़ियन मुश्किल। तो नाजरीन खबरनामा दियो इजाजत, खुदा सवाल।